ઓમ શાંતિ. તારીખ 22 જૂન 2021. બાબાના મધુર મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। આ દુનિયામાં શિવ બાબા જ છે કે જે સેવા કરે છે એ નિષ્કામ સેવા કરે છે. બાકી જે પણ મનુષ્ય આત્માઓ કર્મ કરે છે, સેવા કરે છે, એનું ફળ એને અવશ્ય મળે છે. प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ડ્રામા પ્રમાણે કઈ વાત 100% ચોક્કસ છે અને એ વાત બાબા કે છે તમે જાણો છો અને એ વાતની તમને બહુ જ ખુશી છે, તો એ વાત કઈ છે? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है. ડ્રામા પ્રમાણે બાબા કહે છે 100% નવી દુનિયા આવી રહી છે, નવી દુનિયાની સ્થાપના થઈ રહી છે. तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. આપણને એ વાતની પણ ખુશી છે કે બાબાની શ્રીમત ઉપર ચાલીને, બાબાના કદમ ઉપર ચાલીને આપણે આપણા જ માટે નવી દુનિયા, નવી રાજધાની સ્થાપન કરી રહ્યા છીએ. इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है. तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा. બાબા કહે છે હવે દુનિયાનો તો અંત સમય નજીક જ છે, આ દુનિયાનો વિનાશ થવાનો જ છે. તો બાબા કહે છે હવે તમે જેટલો ઊંચ પુરુષાર્થ કરશો એટલું જ તમને ઊંચામાં ઊંચું પદ પ્રાપ્ત થશે. તો હવે બને એટલું આપણે પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર ધ્યાન આપીશું. ગીત હૈ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने. ओम शांति. जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं. बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं. बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव. બાબાના બાળકો કહે છે કે બાબા તમે મળ્યા, તમારું જ્ઞાન મળ્યું, એ જ્ઞાન થકી અમે સ્વર્ગના, નવી દુનિયાના માલિક બનીશું. બાબા પણ કહે છે બાળકો मन मना भव. बात एक ही हो गई. मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? દુનિયાના મનુષ્યો તો પૂછશે જ કે તમે રોજ સત્સંગમાં જાઓ છો તો તમને સત્સંગમાં જઈને મળે છે શું? तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं. તો બાબાના બાળકો પણ કહે છે કે અમને બાબા મળ્યા છે અને બાબા થકી અમે વિશ્વના માલિક બનવાના છીએ. विश्व का मालिक और कोई बन न सके. विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है. शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता.
વિશ્વના માલિક બાબા કહે છે લક્ષ્મીનારાયણ બને છે. બાબા ભલે નવી દુનિયાની સ્થાપના કરી રહ્યા છે, પણ બાબા એ નવી સૃષ્ટિના, નવી દુનિયાના માલિક બનતા નથી. तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो. तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता. ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं. બાબા નવી દુનિયાની સ્થાપના કરે છે, પણ એ નવી દુનિયાના માલિક નથી બનતા. બાળકોને નવી દુનિયાના માલિક બનાવીને એ પરમધામ જાય છે, પરમધામ રહે છે. એટલા માટે બાબા સમાન નિષ્કામ સેવા બીજું કોઈ કરી શકતું નથી. हरेक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है. भक्ति मार्ग में या किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है. બાબા કહે છે આજે ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ સેવા કરે, આજે કોઈ સામાજિક સેવા, સોશિયલ વર્કિંગ કરે, પણ બાબા કહે છે એ સેવા, એ કર્મનું ફળ એમને અવશ્ય મળે છે. बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ. बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में या वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ. બાબા કહે છે હું તમને વિશ્વના માલિક બનાવું છું, તમને સુખધામના માલિક બનાવું છું અને હું પોતે નિર્વાણ ધામમાં જાઉં છું. वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे. मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं. લૌકિકમાં પણ બાબા કહે છે વાનપ્રસ્થ અવસ્થા એટલે કે 60 વર્ષ પછી એ માને છે કે હવે આપણે પોતાની જવાબદારી બાળકોને સોંપીને હવે સત્સંગ કરીએ. गुरु कहते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए. अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते. બાબાના બાળકોને પણ ખબર છે કે માત્ર શિવ બાબા જે સર્વ આત્માઓના સદગુરુ છે એ જ આત્માને મુક્તિ અને જીવન મુક્તિનો સાચો રસ્તો બતાવી શકે છે. કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર મુક્તિ અને જીવન મુક્તિનો રસ્તો બતાવી શકે એમ નથી. वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते. બાબા કહે છે કોઈ મનુષ્ય માત્ર પોતાની પણ સદગતિ નથી કરી શકતા. अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके. बाप आते ही है परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो. બાબા પણ પરમધામ નિવાસી છે અને આપણે એમના સંતાન, એમના બાળકો પણ પરમધામ નિવાસી છીએ. तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर. बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है. દરેક આત્માને પોતપોતાનો પાર્ટ ભજવવા માટે આ સૃષ્ટિ ઉપર આવવું જ પડે છે. એ રીતે બાબાને પણ એકવાર
આ સૃષ્ટિ ઉપર આવીને પોતાનો પાઠ ભજવવો પડે છે, જ્યારે કે આ દુનિયાનો વિનાશ અને નવી દુનિયાની સ્થાપના કરવાની છે। तो जरूर नर्क का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा आवीने ब्रह्माना तननो आधार लईने सर्व आत्माओने ज्ञान आपीने आदि सनातन देवी देवता धर्मनी स्थापना करी रह्या छे। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। कल्प पहला पण बन्या हता, अत्यारे पण फरीथी बनी रह्या छीए। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। पतित पावन शिव बाबा ने कहवाय छे। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। परमात्मा निराकार छे, तो बाबा कहे छे मारे तननो आधार लेवो पड़े, एटला माटे ब्रह्माना तननो आधार लईने आपणने ज्ञान आपे छे अने राजयोग शिखवाड़े छे। देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अत्यारे आदि सनातन देवी देवता धर्म नथी, तो फरीथी ए धर्मनी स्थापना करवी पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाबा कहे छे स्वर्गनी स्थापना भारत उपर ज थाय छे, एटले के भारत ज सौथी प्राचीन खंड छे। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, एटले के देवी देवताओं सतयुगना आरंभ थी आव्या। बाकी और तो आते ही है 2500 वर्ष के बाद, एटले के देवी देवता धर्मनी आत्माओं छे ए सतयुगनी शरूआत थी आवे छे, ज्यारे बीजा धर्मनी आत्माओं छे ए 2500 वर्ष पछी एटले के द्वापर में आवे छे। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। बाबा कहे छे जे पण धर्मनी आत्माओं आवे छे त्यारे एमनी आत्मानी अवस्था सतो प्रधान होय छे, परंतु जेम जेम समय जाय छे एम ए आत्माओं पण तमो प्रधान बनती जाय छे। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं।
यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। बाबा कहे छे देवी देवता धर्मनी आत्माओने 5000 वर्ष थया, तो सौथी वधारे ए आत्माओ अत्यारे होवी जोईए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, कारण के द्वापर युग शुरू थयो तो बाबा कहे छे आत्माओ पोताना असल धर्म देवी देवता धर्म ने भूली जाय छे अने एना पछी बीजा अन्य धर्मों में जती रहे छे। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। हवे बाबा के छे फरीथी ए देवी देवता धर्मनी स्थापना थई रही छे। बाबाए आपणे ब्राह्मणोने निमित्त बनाव्या छे अने ए नवी दुनियानी स्थापना थशे बाबानी श्रीमत प्रमाणे। यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनआर्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। बाबा कहे छे कि द्वापर युग में आव्या तो पोताना धर्म ने भूली गया, तो जे धर्म आव्यो ए धर्मनु नाम राख्यु अने ए धर्म में जोड़ाई गया। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा अपने पूरा 21 जन्मनो वारसो आपे छे, तो बाबा कहे छे तमारे कितलू याद करवू जोईए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। बाबा कहे छे आपड़ा लौकिक पिता, पारलौकिक पिता शिव बाबा अने त्रीजा पिता अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह ब्रह्मा बाबा नी बात छे। तो ब्रह्मा बाबा ने सौथी वधारे निंदा एमने सांभळवी पड़े छे, लोकोना अपशब्दो एमने सांभळवा पड़े छे। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा।
गाली खाने के लिए यह फंसा है। બાબા કહે છે બ્રહ્મા બાબા વચ્ચે ફસાયા છે। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। બાબા કહે છે અલૌકિક બાપ પ્રજાપિતા બ્રહ્માને જ બધું સહન કરવું પડે છે। यह किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापिस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा। બાબાના બાળકો તો જાણે જ છે કે વિનાશ થવાનો જ છે અને જ્યારે આ પુરાની પતિત દુનિયાનો વિનાશ થશે ત્યારે જ નવી દુનિયા આવશે। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्तिधाम। જે પુરુષાર્થ કરશે એ બાબા કહે છે સતયુગમાં આવશે, એમને ઊંચામાં ઊંચું પદ મળશે, બાકીની આત્માઓ જશે મુક્તિધામ। અને જ્યારે એમનો સમય આવશે પાઠ ભજવવાનો ત્યારે એ પરમધામથી આ દુનિયા ઉપર પોતાનો પાઠ ભજવવા માટે આવશે। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, શાંતિ કે लिए कितना ધક્કા ખાતે। આજે દુનિયામાં લોકો શાંતિ મેળવવા માટે કેટલા ધક્કા ખાય છે, કેટલી મથામણ કરે છે કે મારા મનને આત્માને શાંતિ મળે। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। જ્યાં સુધી પુરાની દુનિયાનો વિનાશ નહીં થાય તો નવી દુનિયા કઈ રીતે આવશે। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। બાબા કહે છે તમને ત્રીજું નેત્ર મળ્યું છે, તમે ત્રિકાલદર્શી બની ગયા છો। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, દુનિયામાં તો વિચારી રહ્યા છે કે દુનિયામાં શાંતિ કઈ રીતે થાય। अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो, એટલે કે બધા આપસમાં પ્યારથી રહે, કોઈ લડાઈ ઝઘડો ના થાય। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई है तो वननेस हो जाएगी। अगर बाबानी मत ले અને બાબાની મત ઉપર ચાલે કે દુનિયાની સર્વ આત્માઓ આપસમાં ભાઈ ભાઈ છે। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। જો આ જ્ઞાન પણ મળી જાય કે સર્વ આત્માઓ આપસમાં ભાઈ ભાઈ છીએ તો બાબા કહે છે પછી કોઈ લડાઈ નહીં થાય। यह भी तो सतयुग में ही था, બાબા કહે છે તો સતયુગમાં હતું। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, સતયુગમાં બાબા કહે છે આપસમાં ખૂબ જ પ્રેમ ભાવ છે, ત્યાં આત્માઓ લડતી નથી। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। બાબા કહે છે આ તો કળયુગ છે, રાવણનું રાજ્ય છે, દરેક આત્માની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ બની ચૂકી છે, વિકારી બની ચૂકી છે। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था। બાબા કહે છે તમે જાણો જ છો કે સતયુગમાં જ એક અખંડ રાજ્ય હોય છે।
वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा કહે છે આત્માઓ પણ આ જ્ઞાન છે, પરંતુ એમાં પણ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे तो बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, એટલે કે એક જ ધર્મ હતો। यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। જેવા બાપ છે એ જ પ્રમાણે આપણે બનવાનું છે। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। भक्ति मार्गમાં પણ બાબા કહે છે મારો પાર્ટ છે। જે પ્રમાણે આત્માઓ જે પણ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે એ રીતે મારે પણ એમની મનોકામનાઓ પૂરી કરવી પડે છે। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पार्ट चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाबा कहे विनाश तो जरूर થવાનો છે, કારણ કે નવી દુનિયા બનાવવાની છે, નવી દુનિયા આવવાની છે। તો એના માટે પહેલા આ જૂની પતિત દુનિયાનો નાશ આવશ્યક છે। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। બાબાના બાળકો જાણે છે, બાબાના બાળકોની બુદ્ધિમાં છે જ કે દુનિયાનો વિનાશ થવાનો છે, તો કુદરતી આપત્તિઓ પણ આવશે જ। मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। बाबा के छे आ शरीर छे, शरीरनो नाश थशे ए पण बाबा के छे एनु खाद खातर बनी जशे, एमां मळी जशे। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। बाबा के छे शिवलिंग बनावे, सालिग्राम बनावे, પછી એનો નાશ થઈ જાય, પાછું બીજા દિવસે ફરીથી બનાવે છે। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। बाबा के छे रावण दुश्मन छे, तो बाबा के छे छतांय एने दर वर्ष एनुं पूतळुं बनावे छे अने रावण दहन करे छे।
एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। બાબા કહે છે રાવણ મોટામાં મોટો દુશ્મન છે તો એને એક જ વાર સમાપ્ત કરી દો, એનું એક જ વાર દહન કરી દો અને હંમેશ માટે રાવણને દૂર કરી દો। लेकिन रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। બાબા કહે છે દર વર્ષે રાવણને વધારે વધારે મોટો બનાવે છે અને બાળે છે। એનો અર્થ છે કે દિવસે 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 હવે રાવણનું રાજ્ય વધી રહ્યું છે, એટલે કે વધારે ને વધારે પાપ અને દુઃખ આવી રહ્યું છે। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है यह है रावण के कारण। બાબા કહે છે અત્યારે જે કર્મની ભોગના કોઈ ને કોઈ પરિસ્થિતિ આવે છે, શારીરિક મોટા મોટી બીમારી પણ આવે છે, એ છે બાબા કહે છે રાવણના કારણે, વિકારોના કારણે। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। જ્યારે મનુષ્ય વિકારોને વશ કર્મ કરે છે તો બાબા કહે છે એ કર્મ વિકર્મ એટલે કે પાપ કર્મ બની જાય છે, અને જ્યારે પાપ કર્મ બને છે ત્યારે એનું ફળ, એની સજા ભોગવવી પડે છે। सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा કહે છે 2500 वर्ष सुख છે અને 2500 वर्ष दुख છે। इस हिस्ट्री जियोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। બાબા કહે છે અત્યારની દુનિયા વિકારી છે, કળયુગી દુનિયા છે, આ દુનિયાને આપણે સતયુગી दुनिया કહી શકીશું નહીં। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं न कि सतयुग में। तो बाबा કહે છે 3 ધર્મ એટલે બ્રાહ્મણ ધર્મ, દેવતા ધર્મ અને ક્ષત્રિય ધર્મ। એટલે કે અત્યારે બ્રાહ્મણ વંશી બનીએ છીએ, સતયુગમાં સૂર્યવંશી અને ત્રેતા યુગમાં ચંદ્રવંશી। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने या राम ने कोई धर्म स्थापन किया। બાબા કહે છે એવું તો બનવાનું નથી કે સતયુગમાં લક્ષ્મી નારાયણ કોઈ બીજા ધર્મની સ્થાપના કરશે। બાબા કહે છે નહીં, આ જ સંગમ યુગનો સમય છે જ્યારે બ્રાહ્મણ, દેવતા અને ક્ષત્રિય ધર્મની સ્થાપના થાય છે। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। એટલે કે સતયુગ અને ત્રેતાયુગમાં આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ, એના પછી દ્વાપર યુગમાં બાબા કહે છે બીજા ધર્મની સ્થાપના થશે। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। બાબા કહે છે દરેક ધર્મમાં એમનું ધર્મશાસ્ત્ર એક હોય છે,
પરંતુ એમાંથી પણ બીજા ધર્મશાસ્ત્રો બનતા જાય છે। आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। बाबाना बाळकोना बुद्धिमां आ ड्रामाનું જે રહસ્ય છે, ડ્રામાનું જે રાજ છે એ બાબા કહે છે સારી રીતે સમજાવી ગયું છે અને એના લીધે જ બાબાના બાળકો નિશ્ચય બુદ્ધિ રહીને, નિશ્ચિંત બુદ્ધિ રહીને એ ખુશીમાં રહે છે। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। बाबा कहे छे बाळकोने पूरेपूરું 100% विश्वास छे के श्रीमतना आधारे આપણે પોતાનું રાજ્ય ભાગ્ય સ્થાપન કરી રહ્યા છે। આમાં આપણે કોઈ લડાઈ ઝઘડો કરવાનો નથી। આપણે શ્રીમતના આધારે નવી દુનિયાની સ્થાપના કરવાની છે। राजधानी स्थापन हो रही है यह सर्टेन है, नवी दुनिया आवવાની છે એ પૂરેપૂરી 100% સાચી વાત છે। एज सर्टेन एज डेथ, तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। 5000 વર્ષ પહેલા પણ આપણે રાજ્ય ભાગ્ય લીધું હતું, હવે ફરીથી આપણે પોતાનું રાજ્ય ભાગ્ય લઈશું। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा वारंवार કહે છે તમે જેટલો પુરુષાર્થ કરશો, જેટલી સેવા કરશો એ જ પ્રમાણે તમને સતયુગમાં પદ મળશે। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। જે આપણે બાબાની મહિમા ગાઈએ છીએ, જેમ બાબા શાંતિના સાગર છે, પ્રેમના સાગર છે, સર્વશક્તિવાન છે, તો એ પ્રમાણે આપણે પણ એ ગુણ પોતાનામાં ધારણ કરવાના છે। બાબા સર્વશક્તિમાન છે તો આપણે માસ્ટર સર્વશક્તિમાન બનવાનું છે, પ્રેમ સ્વરૂપ બનવાનું છે, શાંત સ્વરૂપ બનવાનું છે। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, कारण के सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया छे અને એ દુનિયાનો વારસો લેવા માટે બાબા કહે છે તમારે સંપૂર્ણ પવિત્ર બનવું પડશે। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। बाबा कहे छे तन मन धन थी બાબાની શ્રીમત ઉપર ચાલીને સેવા કરશો અને એ જ રીતે આપણે દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના કરવાની છે। વરદાન હૈ, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प या संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा।
બાબા કહે છે માસ્ટર ત્રિકાલદર્શી બનીને જે પણ આપણે સંકલ્પ કરીએ એ સંકલ્પને કર્મમાં લાવીશું, એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ બનીને કર્મ કરીશું તો આપણાથી કોઈ પણ વ્યર્થ કર્મ થશે નહીં। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। બાબા કહે છે તમારી સંપૂર્ણ અવસ્થા અને સંપૂર્ણ સ્ટેજ ત્યારે બનશે જ્યારે તમે વ્યર્થ સંકલ્પ અને વ્યર્થ કર્મને સમર્થ સંકલ્પ અને સમર્થ કાર્યમાં પરિવર્તન કરશો। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों या विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने या अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। બાબા કહે છે પોતાના સીમિત નથી રહેવાનું, અન્ય આત્માઓને પણ વાઇબ્રેશન શક્તિ સુખ શાંતિના વાઇબ્રેશન આપીને એમના પણ વ્યર્થ સંકલ્પ અને વિકર્મોનો બોજ દૂર કરવાનો છે। ત્યારે બાબા આપણને વિશ્વ કલ્યાણકારી કહેશે। સ્લોગન, નષ્ટો મોહા બનના હૈ तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। બાબા કહે છે નષ્ટો મોહા બનવું છે તો સેવા અર્થ સ્નેહ રાખો, સ્વાર્થથી નહીં। ઓમ શાંતિ।